So dear students, today our topic is the calculator. Okay, so you need to perform some calculations, but after purchasing the latest computer, you don't have a single rupee left in your pocket to purchase a calculator. You need not worry. Just as you use the terminal to use your graphical system like a CLI system, you can use the calculator program to temporarily convert your millions of calculations per second machine into its poor little sibling. You can start the calculator program as shown in figure 8.9 by clicking on applications, accessories and calculator. तो यहाँ पर आपको फिगर 8.9 दी है, उसमें क्या है, कैलकुलेटर का आपको यहाँ पर पिक्चर दिया है। तो आपके पास अगर कैलकुलेटर परचेस करने के लिए पैसे नहीं हैं और आपके पास क्या है, कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर स्टार्ट कर सकते हो। और वो आप कैसे स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, then accessories and then calculator. As you can see in the calculator program looks strangely similar to its hardware counterpart. As it is probably the easiest program to learn even for computer novices, just in use of your fingers. If you are reasonably good at typing, you may use the number key or the numeric keypad on the computer keyboard instead, because that will increase your speed dramatically. The operators can also be entered from the keyboard. The CE and CLR keys both clear the display and reset the current value to 0. Backspace works just like the backspace key on the computer keyboard. It deletes one character to the left of the cursor every time it is pressed. तो कैलकुलेटर प्रोग्राम ओके जो कैलकुलेटर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी फिंगर्स की जगह पर माउस का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अपनी टाइपिंग अच्छी तरह से आती है, ओके टाइपिंग करना आपको कंप्यूटर में अच्छी तरीके से आता है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर आए नंबर की या फिर न्यूमेरिक कीपैड का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। CE और CLR दोनों की डिस्प्ले को क्लियर करती है और करंट वैल्यू को 0 से रिसेट करते हैं। और फिर उसके बाद बैकस्पेस की, ये बैकस्पेस की का शॉर्ट फॉर्म है BKSP। तो ये की क्या वर्क करती है, तो कंप्यूटर पर रही बैकस्पेस की तरह ही अपना वर्क करती है और हर बार प्रेस किए जाने पर ये कर्सर के लेफ़्ट साइड के अक्षर को डिलीट करती है। Also, you may use the undo facility in the edit menu if you committed a mistake in entering the data or operation. Another nice touch, keeping in mind the needs of IT professionals, is the insert ASCII value operation in edit menu. It allows you to enter a character and insert the ASCII code for the character in the display window. Thus, if you enter the character a small, you see 97 inserted in the डिस्प्ले विंडो। तो अगर डेटा या ऑपरेशन एंटर करते समय आपसे कोई भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप एडिट मेनू में दी गई जो फैसिलिटी है उसमें अंडू कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरी अच्छी तरीके से ध्यान रखने की एक बात है कि जो IT प्रोफेशनल्स एडिट मेनू में रहे ऑप्शन इंसर्ट ASCII वैल्यू को, ये आपको एक कैरेक्टर एंटर करने की परमिशन भी देता है और डिस्प्ले विंडो में उसे संबंधित ASCII कोड को इंसर्ट करता है। और इस प्रकार यदि आप कैरेक्टर A मीन्स स्मॉल a एंटर करते हैं तो आप डिस्प्ले विंडो में 97 इंसर्ट किया हुआ देखेंगे। सम ऑफ यू माइट हैव एन एल्डर ब्रदर और सिस्टर स्टडिंग साइंस और engineering. In that case, you might have seen the scientific calculator. It has a large number of additional operations useful in science, mathematics, and engineering. Don't be disheartened. Just click View Scientific, and your calculator instantly morphs into a scientific calculator. See Figure 8.10. There are advanced financial and programming calculators as well. Conversions between different number system among other थिंग्स। तो इसमें क्या दिया है, फिगर 8.10 में आपको साइंटिफिक मोड व्यू, साइंटिफिक कैलकुलेटर का पिक्चर दिया गया है। और इसे हम ओपन कैसे कर सकते हैं, तो व्यू मेनू में आपको क्या करना होगा, साइंटिफिक को क्लिक करना होगा उस पर। उससे क्या होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और आपका कैलकुलेटर तुरंत साइंटिफिक कैलकुलेटर में बदल जाता है, मीन्स ओपन हो जाता है। एडवांस फाइनेंशियल और प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं।
So our next topic is the gedit text editor. The gedit text editor, also known simply as text editor, is a graphical editor for plain unformatted text file and documents. As a plain text editor, it only saves the text in the file and never any formatting. The gedit program allows us to change operations like font size, color, scheme, etc. But it is important to remember that these operations are not saved in the file, but they become the user's current gedit preferences for all files till they change this setting again. तो gedit text editor उसे किस नाम से जाना जाता है? सिंपली एज टेक्स्ट एडिटर, और प्लेन मीन्स अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइलों और डॉक्यूमेंट्स के लिए ये ग्राफिकल एडिटर है। प्लेन टेक्स्ट एडिटर के रूप में ये केवल टेक्स्ट को फाइल में सेव करता है और कभी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करता है। gedit प्रोग्राम हमें फॉन्ट साइज, कलर, स्कीम ऐसे जो ऑप्शंस है उसे चेंज करने की परमिशन भी देता है। बट ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये ऑप्शन फाइल में सेव नहीं किए जाते हैं, परंतु वो यूज़र के सभी फाइल के जो करंट gedit प्रेफरेंसेस बन जाते हैं जब तक कि वे इन सेटिंग्स को फिर से नहीं बदलते हैं। तो आपको यहाँ पर फिगर दी है 8.11, उसमें क्या है? gedit टेक्स्ट एडिटर। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट एडिट किए हैं उमाशंकर जोशी के बारे में। लाइक अदर key components of the Linux system, gedit supports major portion of the Unicode character set, including major Indian languages and even substantially different languages like Arabic and Chinese, while Ubuntu comes with Unicode fonts to display text in all these languages. Support for input in languages other than English is not included on the installation. CD itself to save disk space. Support for additional languages needs to be downloaded and installed. This process is shown in Appendix 1. Some of the more commonly used menu options along with the corresponding shortcut keys are as under. तो यहाँ पर क्या है कि लिनक्स सिस्टम में कुछ मुख्य कंपोनेंट्स की तरह gedit यूनिकोड कैरेक्टर सेट के मेजर पोर्शन का सपोर्ट करता है, और जिसमें ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेजेस और अलग भाषा जैसे कि अरेबिक, चाइनीज़ जैसे का समावेश होता है। जबकि उबंटू इन सभी भाषाओं में टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए यूनिकोड फॉन्ट्स के साथ है, और इंग्लिश के अलावा की भाषाओं में इनपुट के लिए सपोर्ट इंस्टॉलेशन सीडी पर समावेशित नहीं है, और ये स्वयं डिस्क स्पेस का सेव करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट कीज दी गई है, जैसे कि फाइल मेनू है, उसमें है सबसे पहला न्यू कमांड की शॉर्टकट की है Ctrl+N। उसका काम क्या है? क्रिएट अ न्यू फाइल। देन ओपन, Ctrl+O, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। नेक्स्ट सेव, Ctrl+S, सेव द करंट फाइल। जो करंट फाइल है उसे सेव करने के लिए एक कमांड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सेव एज, Shift+Ctrl+S, save or copy the current file under a new name. Next, print, Ctrl+P, print the current file. Next, close, Ctrl+W, close the current file। जो current file है उसे close करने के लिए। Next, quiet, Ctrl+Q, quiet means terminate the gedit program। gedit प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम ये कमांड का यूज़ करते हैं। फाइल मेनू के बाद आता है एडिट मेनू। इसमें सबसे फर्स्ट है अंडू, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग वाइल वर्किंग ऑन अ फाइल, दिस ऑप्शंस कैन बी यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन। व्हेन यूज रिपीटेडली द ऑप्शन गोज ऑन अनडूइंग आवर ऑपरेशंस इन रिवर्स ऑर्डर। तो अगर फाइल का काम करते समय कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो इस ऑप्शन का यूज़ हम लास्ट ऑपरेशन के प्रभाव को रिवर्स करने के लिए करते हैं, और बार बार यूज़ होने पर यह विकल्प हमारे ऑपरेशन को रिवर्स ऑर्डर में अंडू भी करता है। नेक्स्ट इज रीडू, Shift+Ctrl+Z, रीअप्लाई द मोस्ट रिसेंटली अनडन ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन कैन बी रिपीटेड टू। तो
हाल ही में किए गए अंडू ऑपरेशन को फिर से अप्लाई करना, और ये विकल्प दोहराया भी जा सकता है, मीन्स रिपीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कट, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X टू कट द टेक्स्ट सिलेक्टेड विद द माउस टू द क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट कॉपी, Ctrl+C टू कॉपी द text selected with the mouse to the clipboard. Next is paste, Ctrl+V to paste the text in the clipboard at the current cursor location. Next is preferences in Ubuntu. The preferences menu is traditionally the last menu item in the edit menu. It is this menu that provides option to change font size, color, etc. for the gedit program. तो जो कट ऑपरेशन है, जो कट कमांड है, उसका यूज़ क्या होता है कि चूज़ किए गए टेक्स्ट को कीबोर्ड पर माउस से कट करने के लिए, कॉपी में कॉपी करने के लिए, और पेस्ट में जो क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट को वर्तमान लोकेशन पर पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस। तो उबंटू में प्रेफरेंसेस मेनू एडिट मेनू का लास्ट का मेनू आइटम है, सबसे लास्ट होता है, और ये मेनू gedit प्रोग्राम के लिए फॉन्ट साइज, कलर एक्सेट्रा चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन भी अवेलेबल करता है। सी दिस इज़ द फिगर 8.12 द gedit टेक्स्ट एडिटर आफ्टर चेंजिंग प्रेफरेंसेस। तो ये कौन सा प्रोग्राम है कि प्रेफरेंसेस चेंज करने के बाद का gedit टेक्स्ट एडिटर। इसमें क्या आपको चेंज दिख रहा है, फॉन्ट की साइज़ भी चेंज है और बैकग्राउंड का ये कलर है वो भी चेंज हो गया है। ओके, यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ आप देख सकते हो कि चेंज हो चुकी है। Shows a gedit screen after these options have been changed from their defaults. Some of the commonly used operations are also available as tools in the toolbar. The gedit text editor supports editing of multiple files at a time. There are two ways of doing this. To open multiple separate gedit windows, see figure 8.13, or to open the two files in two tabs of the same editor window, because gedit supports tab interface as shown in figure 8.14. तो 8.12 में डिफ़ॉल्ट से ऑप्शन चेंज होने के बाद का gedit आपको स्क्रीन शो होती है, ये वाली। ओके, और कुछ सामान्य यूज़ में आने वाले ऑप्शंस टूल बार में टूल्स के रूप में भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और gedit टेक्स्ट एडिटर एक ही समय में मल्टीपल फाइलों को एडिटिंग का सपोर्ट करता है, उसके लिए सपोर्ट करता है, और ये करने के दो तरीके हैं, मल्टीपल सेपरेट gedit विंडोज़ को ओपन करना, या फिर दूसरा है एडिटर विंडो के दो टैबों में दो फाइलें ओपन करना। तो ये जो फर्स्ट है वो यहाँ पर आपको फिगर 8.13 में दिख रहा है कि मल्टीपल gedit विंडोज़, एंड सी दिस इज फिगर 8.14 मल्टीपल फाइल्स इन डिफरेंट gedit टैब्स। दो अलग अलग टैब में ओपन होता है ना, वो ये वाली फिगर है। The benefit of the first approach is that we can see multiple files at the same time on the screen and compare them, or easily use one file as a references while editing another. The advantage of the second approach is that it requires less screen space. Also, switching between the tabs is not difficult. We may click the tab heading with the mouse to switch to any tab, or use the shortcut keys Alt+N to jump to the N tab, or Ctrl+Alt+ page up / Ctrl+Alt+ page down to move to the previous and next tab respectively. तो पहली झलक में क्या फ़ायदा होता है, जो पहला बेनिफिट है वो कि हम स्क्रीन पर एक साथ बहुत सारे मल्टीपल फाइलें देख सकते हैं और उनकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या फिर रेफरेंस के रूप में एक फ़ाइल का यूज़ करके बाकी फ़ाइलों का एडिटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसे कम स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है, और टैब मीन्स फाइल के बीच में स्विचिंग भी कठिन नहीं होता, बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं होता है। किसी भी टैब पर जाने के लिए टैब हेडिंग को माउस से स्विच कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। Another interesting feature is that dragging a tab title out of the window creates a new gedit window and moves the tab to it. While dragging a tab title into the existing gedit windows moves the tab to that window. तो दूसरा फीचर ये है कि टैब फाइल को
टैब टाइटल को विंडो से बाहर ड्रैग करने पर नया Gedit विंडो ओपन होता है जो टैब को उसकी ओर ले जाता है, और जबकि टैब टाइटल को स्टार्ट Gedit विंडो में ड्रैग करने से टैब को उस विंडो की ओर पर ले जाता है। इफ़ यू आर एडिटिंग a large document and want to use the maximum screen space, you may select the full screen mode from the view menu. In this mode, the entire screen will be occupied by the Gedit window and only the content pane where you type will be visible, hiding everything else including the title bar, the menu bar and the toolbar. The shortcut key for this is F11. You may return to the normal mode by pressing F11 again. Trying to move the mouse pointer slowly out of the screen from the top of the screen will make the toolbar visible at a floating window with one more option. Leave full screen added to it. You may always switch to another program directly by pressing Alt+Tab. तो अगर आप किसी बड़े डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हो और आपको उसमें ज़्यादा स्क्रीन स्पेस की ज़रूरत होती है तो आप फुल स्क्रीन मोड व्यू मेनू में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये फुल स्क्रीन ऑप्शन आपको कहाँ से फाइंड होगा, कहाँ से मिलेगा? व्यू मेनू में से। इस मोड में पूरी स्क्रीन Gedit विंडो और कंटेंट पेन में एक्यूपाई हो जाएगी और आप जहाँ टाइप करेंगे वहाँ टाइटल बार, मेनू बार और टूल बार सहित बहुत सारे वस्तुओं को छुपा कर भी आप देख सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट की है F11 और आप F11 को फिर से प्रेस करके अपने नॉर्मल मोड पर भी पहुंच सकते हैं। स्क्रीन के ऊपरी भाग से माउस पॉइंटर को धीरे धीरे स्क्रीन के बाहर करने से टूलबार फ्लोरिंग विंडो की तरह एक और विकल्प जैसे कि लीव फुल स्क्रीन के साथ आपको विजिबल होगा। आप सदैव दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए सीधे Alt+Tab की को भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज द Gedit टेक्स्ट एडिटर अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ several computers languages and can highlight parts of the text using different colors depending on the grammatical roles they play. These make reading and understanding easy and make help in identifying some common typing errors early. While no computer language is covered in your syllabus at this stage, Figure 8.15 shows a demonstration of this capability. This option is provided in the View Highlight Mode option. Of course, the files are saved as plain text only and not as formatted text. Gedit टेक्स्ट एडिटर कुछ कंप्यूटर भाषाओं के सिंटैक्स मीन्स क्या होते हैं, ग्रामर को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और टेक्स्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार अलग अलग कलर्स में भी उसको क्या करता है, उभार सकता है और ये पढ़ने और समझने को ईजी बनाता है ताकि पहले की गई कुछ सामान्य टाइपिंग की भूलों को वो पहचान सके। और जैसे कि इस स्टेज पर आपके अभ्यासक्रम में कोई कंप्यूटर लैंग्वेज कवर नहीं होती है तो फिगर 8.15 ये क्षमता का प्रदर्शन दर्शाती, रिप्रेजेंटेशन दर्शाती है और ये ऑप्शन आपको व्यू मेनू में हाईलाइट मोड उसमें अवेलेबल होता है। सी दिस इज़ द फिगर 8.15 सिंटैक्स हाईलाइटिंग इन Gedit। यहाँ पर हाईलाइट भी हो गया है देखो और अलग अलग कलर भी यहाँ पर होते हैं। द सर्च मेनू प्रोवाइड्स ऑप्शन टू फाइंड सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट। इट अलाउज अस टू फाइंड द occurrence repeatedly till we choose to exit the search. We may also search for occurrences of some text and replace them by another text. We may go for a one-by-one replacement of the occurrences, optionally skipping replacement of some occurrences, or we may replace all occurrences in the entire document if we are sure about doing it. The option incremental search continually goes on matching the text as soon as we type each character and highlights all occurrences of the current text. The shortcut key for these operations are find, Ctrl+F, replace, Ctrl+H, find next, Ctrl+G, find previous, shift plus Ctrl+G and incremental search Ctrl+K. तो सर्च मेनू बड़े डॉक्यूमेंट में से अलग अलग जो विशिष्ट टेक्स्ट को फाइंड करने में आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है और जब तक हम सर्च में से निकलने का तय नहीं करते तब तक ये बार बार बनाव ढूंढने की अनुमति हमें प्रदान करता है। मीन्स वो हमें परमिशन देता है और हम कुछ टेक्स्ट की हाजिरी के लिए भी सर्च कर सकते हैं और उन्हें दूसरे टेक्स्ट को रिप्लेस भी
दूसरे जो टैग्स होते हैं उससे रिप्लेस भी हम उसे कर सकते हैं। और हम एक के बाद एक बनावों को रिप्लेसमेंट करते हैं तो कुछ बनावों का ऑप्शन स्किपिंग रिप्लेसमेंट, या अगर हम कोई विश्वस्त हो तो पूरे डॉक्यूमेंट से बनावों को रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही हम प्रत्येक कैरेक्टर टाइप करके जो वर्तमान टेक्स्ट, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर 8.16 में दिखाया है इंक्रीमेंटल सर्च इन GEdit, उसके बनावों को हाईलाइट करते हैं तो ऑप्शन इंक्रीमेंटल सर्च लगातार टेक्स्ट को मैच कर जाता है। और इन ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कीज़ भी यहाँ पर आपको दी गई है, जैसे कि फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस Ctrl+H, फाइंड नेक्स्ट Ctrl+G, फाइंड प्रीवियस Ctrl+Shift+Ctrl+G, एंड लास्ट है इंक्रीमेंटल सर्च, उसके लिए Ctrl+K। The GEdit text editor even has support for checking the spelling of words in your document। तो GEdit text editor आपके डॉक्यूमेंट में रहे शब्दों और स्पेलिंग को भी चेक कर सकता है। It has built-in dictionaries for some language, और इसमें कुछ लैंग्वेजेस के लिए बिल्ट इन डिक्शनरी भी होती है। When we choose the option tools check spelling, it checks the spelling of every words in our document from the beginning। तो जब हम ऑप्शन कौन सा है, टूल्स मेनू में चेक स्पेलिंग, ये ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये शुरू से अंत तक हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक शब्द की स्पेलिंग को चेक करता है। फॉर एवरी सपोज एरर दैट इट फाइंड्स, इट सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर स्पेलिंग एज पॉसिबल अल्टरनेटिव। और अगर कोई गलती, कोई मिस्टेक मिलती भी है तो वो समान स्पेलिंग वाले शब्दों की लिस्ट आपको शो करता है। It offers option to ignore the supposed misspelling only for this occurrence of the word or for all occurrences of the word, and to change the word with the selected suggestion from the list for these occurrences of the word or for all occurrences of the word। तो वो मिसस्पेलिंग को सुधारने के लिए ऑप्शन आपको देता है और वो सिलेक्टेड सुझावों में से शब्द को चेंज करने की ऑफ़र भी आपको देता है। और कभी कभी सही शब्द भी गलत स्पेलिंग के कारण GEdit में से डिलीट हो जाता है, उड़ जाता है, तो क्योंकि वह उसकी किसी डिक्शनरी में नहीं होता है इसलिए वो ऐसे हो जाता है। समटाइम अ करेक्ट वर्ड में बी फ्लैग एज इनकरेक्ट स्पेलिंग बाय GEdit बिकॉज इट मे नॉट बी देयर इन इट्स बिल्ट इन डिक्शनरी, जैसे मैंने आपको अभी वो बताया। इन सच केसेस वी मे इग्नोर द वर्ड और ऐड द वर्ड टू द यूजर dictionary so that it never again treats the word as error even in the other documents. For this user of the system, the option tools document statistics provides information like number of characters, words and line for the current document. Like most other graphical programs, the help menu is the last one of the menu bar and provides basic help in using the software। तो ऐसी हालत में हम उस शब्द को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और या फिर यूज़र की डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं ताकि फिर कभी वो शब्द को एरर के रूप में न दर्शाए। किसी अन्य यूज़र के डॉक्यूमेंट में भी नहीं ऐसा हो सकता है। विकल्प कौन सा है, टूल्स मेनू में डॉक्यूमेंट स्टेटिस्टिक्स, कैरेक्टर के नंबर, शब्दों और लाइन की करंट डॉक्यूमेंट में जानकारी प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर अन्य ग्राफिकल प्रोग्रामों की तरह हेल्प मेनू मेनू बार में लास्ट मेनू है, अंतिम मेनू है, जो सॉफ्टवेयर के यूज़ के समय आपको क्या करता है, बेसिक हेल्प आपको प्रोवाइड करता है। So dear students, here our part 3 is completed and part 4 we will see in our next video. So you have to watch and listen this video very carefully.